خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق سی ای او ایجوکیشن آفس ڈسٹرکٹ وہاڑی میں اساتذہ پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی ان سروس پروموشن نوٹیفکیشن آرڈرز کی تقسیم کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی محمد اسلم اعجاز چودھری سی ای او ایجوکیشن وہاڑی تھے۔ مہمانان گرامی ماہر محمد اسلم سنپال، مصباح رفیق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وہاڑی اور مرزا طارق محمود مرکزی سینئر نائب صدر پنجاب ٹیچرز یونین وہاڑی پنجاب تھے۔ سی ای او ایجوکیشن کے کمیٹی روم میں سی ای او ایجوکیشن محمد اسلم اعجاز، ماہر محمد اسلم سنپال، مصباح رفیق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور مرزا طارق محمود مرکزی سینئر نائب صدر پنجاب ٹیچرز یونین نے تمام ترقی پانے والے میل اور فیمیل اساتذہ ضلع وہاڑی میں نوٹیفکیشن آرڈرز تقسیم کیے، اساتذہ کو مبارکباد دی۔ سی ای او ایجوکیشن نے تقریب کے شرکاء کو بتایا کہ ضلع وہاڑی میں 20 اساتذہ سائنس، 32 اساتذہ آرٹس، 3 عربی میل ٹیچرز اور 65 فیمیل آرٹس ٹیچرز، 24 سائنس ٹیچرز اور 14 عربی فیمیل ٹیچرز، ٹوٹل 158 اساتذہ بطور ای ایس ٹی اوپر ہائی گریڈ میں ترقی دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی میل اینڈ فیمیل اساتذہ پروموشن کے لیے ڈی پی سی انشاءاللہ تعالی مورخہ 26 نومبر 2022 کو کروائی جائے گی اور بقیہ تمام کام بھی مکمل کیے جائیں گے۔ اساتذہ میرے سفیر ہیں، میں ان کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔ ٹیچرز کے لیے میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، جس پر پنجاب ٹیچرز یونین کے نمائندگان ضلع وہاڑی مرزا طارق محمود مرکزی سینئر نائب صدر، محمد صدر ضلع وہاڑی، چودھری فریاد علی جٹ، حاجی محمد رشید، محمد عارف نور، محمد یونس مغل اور دوسروں نے شرکت کی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس کا شکریہ ادا کیا۔ بڑے ہی اچھے ماحول اور دعائیہ کلمات سے اختتام ہوا۔ مہر حسنین علی شیخانہ کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کبیروالا کا سب سے بڑا کرکٹ میلہ کوٹ اسلام پریس سپر لیگ آج پل باگڑ ہائی اسکول سیکنڈری اسکول میں منعقد ہوا۔ پریس سپر لیگ کے مینجمنٹ مکمل سینئر صحافی منور اقبال تبسم نے کی۔ پریس سپر لیگ کے آج آخری میچ پل باگڑ ہائی سیکنڈری اسکول میں ہوئے، جس میں پہلا سیمی فائنل حویلی سلطان اور باگڑ زلمی کے درمیان ہوا، جس کے سنسنی خیز مقابلے کے بعد باگڑ زلمی نے یہ جیت اپنے نام کی۔ دوسرا سیمی فائنل حویلی قلندر اور کوٹ اسلام ہیروز کے درمیان ہوا، جو کہ کوٹ اسلام ہیروز نے جیت لیا۔ اب فائنل میچ باگڑ زلمی اور کوٹ اسلام ہیروز کے درمیان ہوگا۔ اس پریس سپر لیگ میں مہمانان خصوصی انجینئر مہر غلام صفدر اور میاں حسین جوہانیہ گردیزی، صوبائی وزیر زراعت پنجاب اور راؤس سنور علی گوگی امیدوار پی پی 205 تشریف لائے۔ ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق سلمیٰ خاتون ہسپتال میں فری آئی کیمپ کا انعقاد۔ 80 سے زائد غریب اور مستحق مرد و خواتین کی آنکھوں کے آپریشن اور 100 سے زائد افراد کی آنکھوں کے معائنے کیے، مفت اینکس اور ادویات فراہم کی۔ نواحی گاؤں 86 سکسار میں سلمیٰ خاتون ہسپتال میں مخیر حضرات کی جانب سے فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ معروف ڈاکٹر نے مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا، جبکہ آپریشن بھی کیے۔ اس موقع پر شہری خاتون کا کہنا تھا کہ سلمیٰ خاتون ہسپتال میں اچھا انتظام کیا اور جو لوگ علاج نہیں کروا سکتے ان کی آنکھوں کی بیماریوں کے چیک اپ کیے گئے۔ آپریشن کرنے کے ساتھ ان کو اینک اور ادویات بھی مفت فراہم کی۔ کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر ظفر علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم نے یہاں آنکھوں کا معائنہ کیا اور 80 سے زائد مرد و خواتین کے آپریشن بھی کیے، مفت اینک اور ادویات فراہم کی، مریضوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین بھی کی۔ جی، میں ہاسپٹل میں یہ سیٹ اپ دیکھ کے بہت حیران رہی کہ یہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے آئی کیمپ کے حوالے سے، کہ یہاں پہ وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یا جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ اپنا علاج کرا سکیں، تو وہ یہاں پہ آ کے اپنا فری میں چیک اپ کروا رہے ہیں۔ نہ صرف چیک اپ کروا رہے ہیں بلکہ ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، جس میں گلاسز کی ان کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں، لینسز کے حوالے سے ان کو فیسلٹیز ہیں، اور یہاں پہ بہت ٹرین ٹیم جو ہے وہ لاہور سے آئی ہے اور وہ ان کا جو ہے چیک اپ کر رہی ہے، ایون دیٹ سرجری بھی کر رہی ہے۔ تو آج کے اکوموڈیشن میں جو 100 پیشنٹس جو ہیں ان کی جو ہے سرجری کی جا رہی ہے، تو یہ آئی تھنک ایک بہت اچھا انیشیٹ ہے جو کہ سلمیٰ خاتون ہاسپٹل نے لی ہے۔ ہری پور میں پریس کلب کی نو منتخب کابینہ کو مبارکباد کے سلسلے میں ہری پور کی صرافہ اینڈ جولر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کی پریس کلب آمد۔ پریس کلب کی کابینہ ممبران نے ان کا بھرپور ویلکم کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ناصر امین کی اس رپورٹ میں۔ صرافہ اینڈ جولرز ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کی ہری پور پریس کلب کی نو منتخب کابینہ کو مبارکباد اور مین بازار کے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہری پور پریس کلب آمد ہوئی۔ اس موقع پر صرافہ یونین کے عہدیداران نے مین بازار کے مسائل اجاگر کیے، جس پر صدر پریس کلب حنیف اختر ہزاروی نے ان کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ صرافہ یونین کے صدر خان زیب نے مزید کہا، امید کرتے ہیں کہ پریس کلب کے صحافی معاشرے میں پھیلی بد امنی، برائیوں، اسٹریٹ کرائم سمیت دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے اپنا قلمی جہاد جاری رکھتے ہوئے غریب عوام اور مظلوم عوام کی آواز بنیں۔ یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو
दुकानदार हैं, जो मुलाजिम हैं, उनके मोटर बाइक के लिए कार पार्किंग या मोटर बाइक पार्किंग दी जाए। सराफा यूनियन की काबीना ने उम्मीद जाहिर की कि हरीपुर प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी माशरे में फैली बदअमनी, बुराइयों, स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम के खात्मा के लिए अपना कलमी जहाद जारी रखेंगे और गरीब और मजलूम की आवाज़ बनेंगे और अपने ऊपर आयद जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा भी करेंगे। जमीन पर उगने वाली सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे। तफसीलात जानते हैं मलिक वसीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। जी मलिक वसीम, मजीद आगाह कीजिए। जमीन से उगने वाली सब्जियों के रेट आसमान पर पहुंचकर गरीब की पहुंच से दूर, मजदूर फाकों पर मजबूर। सब्जियां मुकामी पैदावार होने के बावजूद इंतहाई महंगी हो गई। गरीब मजदूर का चूल्हा बंद होकर रह गया। कोई भी सब्जी 400 रुपये किलो से कम नहीं है। महंगाई का जीना जो है ना वो बेकाबू हो चुका है। अगर सब्ज़ी लेने जाए ना तो समझ नहीं आता कि क्या चीज़ लें। आलू लें तो मसाला नहीं आता, मसाला लें तो आलू नहीं आता। अगर बिजली का बिल आ जाए तो कार में 8 दिन फाके पड़ जाते हैं। मटर लेने जाओ तो 400 रुपये किलो, अदरक लेने जाओ 600 रुपये किलो, हरी मिर्च लेने जाओ 800 रुपये किलो। ठीक है जी, ये महंगाई वाला जिन किस दिन काबू होगा। इंतज़ामिया से गुजारिश है गरीब आवाम पे कुछ रहम करें और उनको जो बुनियादी सहूलतें हैं वो फराहम करें। सब्जी जी बहुत महंगी है। गरीब ने इतने सब्जी खा नहीं सकते। 400 रुपये किलो मटर ने, 500 रुपये किलो है। आलू 150 रुपये किलो ने। इतने हर शा खाली है, गरीब की करेगा। 800 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है। 400 दी जा रही है। 100 रुपये का दुध देता किलो, 200 रुपये किलो। इन्हों के आरे दे विच कोई रहना देखा जाए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि गरीब मजदूर से जीने का हक ना छीना जाए और अशियाए खुरोनोश की कीमतें कम करके रिलीफ फराहम करें। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सब कैंपस का क़याम नारोवाल में अमल में लाया जाएगा ताकि इस इलाके में मयारी ज़रई तलीम तहकीक को फ़रोग़ देकर तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकें। इस अमर का इज़हार उन्होंने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, महकमा ज़राअत और सी पंजाब अली अकबर ग्रुप के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद होने वाले किसानों के अज़ीम इज्तिमा से बतौर मेहमान ख़ुसूसी अपने खिताब के दौरान कहा। ज़रई महकमा ज़राअत और सी के अमला अफसरान के हमरा ज़राअत को दरपेश मसाइल सैलाब की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में ज़राअत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म ज़रई पैकेज एक संग मेल साबित होगा, जिसमें काश्तकारों की अरबों रुपए की सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत और सी पंजाब डॉक्टर अंजुम अली बटर ने कहा कि जदीद ज़रई पैदावारी टेक्नोलॉजी किसान को मुंतकिल करने के लिए हुकूमत पंजाब तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है, जिसके तहत सूबे के 22,000 देहातों और खेतों खलियानों तक गंदम बढ़ाओ इस मुहिम है। अली अकबर ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ने उन्होंने कहा कि ज़रई यूनिवर्सिटी के साइंसदान सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़राअत की डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और सी तनवीर अहमद ने कहा कि तस्दीक शुदा बीज का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी समेत मुख्तलिफ ज़रई सिफारशात से काश्तकारों की रहनुमाई करके ज़रई तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर मसीही इबादत गाहों पर होने वाले इबादत के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सैकड़ों पुलिस अफसरान एहलकार ड्यूटी पर तैनात। मुतलका STPOs SHOs ने सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पुलिस अफसरान को चेक किया। मसीही बरादरी समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हमारे अवलीन फ़राइज़ में शामिल है। बादशाह सिक्योरिटी स्कैनिंग के आलात की इंस्टॉलेशन और वर्किंग के साथ साथ जामिया तलाशी के अमल का भी जायज़ा लिया। सिविल पार्षात में सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मामनीन इदारों ने भी किरदार अदा करके माहौल और गैर मुतल्लका अफराद की सरगर्मियों पर नज़र रखी। इस मौके पर DPO इबादत निसार ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि इबादत गाहों में भी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ऐसे मकामात की सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना नहायत ज़रूरी है। मसीही बरादरी समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हमारी अवलीन फ़राइज़ है। रजब अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कंगरपुर में बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश तुफैल उर्फ तोती डोगर 1245 ग्राम चर समेत गिरफ्तार। अलावा अज़ीद दो कस नाजायज़ असला रखने के जुर्म में गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिम तुफैल उर्फ तोती अरसा दराज से मंशियात फरोशी के धंधे में मुलविस था, जिसके सबब इलाके के हज़ारों जवानों ने की ज़िंदगी नशे की लत के सबब बर्बाद हो गई। मुलजिम की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने सुख का सांस लिया। कबल अजीबी इलाके के लिए मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इलाके को मंशियात फरोशों से पाक करने का मिशन जारी है। जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंशाअल्लाह ताला समाज दोस्त अफराद जुर्म की मुकम्मल बेहतरी के लिए मेरे ज़ाती नंबर पर बज़रिया WhatsApp इत्तला दे सकते हैं।
रुख करते हैं पेशावर का। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफ से की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी रहनुमा और समाजी रहनुमा वहीद खान महमद इस मीडिया से मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पेशावर शहर के मशहूर इलाका निश्तराबाद में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारा प्यारा भाई जमात इस्लामी का रहनुमा, समाजी रहनुमा वहीद महमद साहब। उनसे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमला हुआ इसके हवाले से क्या कहें? हमारा नाम वहीद खान मोहम्मद है और हम जमात इस्लामी ज़िले पेशावर के रहनुमा और समाजी रहनुमा हूँ। मैं इमरान खान के बारे में सिंपल सा बात बताता हूँ कि इमरान खान पर और इनका जो लीडरशिप है, यानी PTI की मरकज़ी चेयरमैन और दीगर कैदीन पर पुरअमन एहतजाज में हमला हुआ, हम उसका मजम्मत करती है और हुक्मरानों से मुतालबा करता हूँ। और मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ मरकज़ी हुकूमत से, ताकि इमरान खान पर जो हमला हुआ उनका आज़ादाना तहक़ीक़ात होना चाहिए। और इसके बाद जो अज़म स्वाति साहब का साथ जो कुछ हुआ उसका भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करता है हुक्मरानों से, ताकि उनका भी आज़ादाना तहक़ीक़ात होना चाहिए। और मुल्क में इस तरह हालात नहीं होना चाहिए। तमाम सियासी पार्टियों को और कैदीन को एक दूसरे का एहतराम का रिश्ता होना चाहिए और इदारों का भी एहतराम होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में गरीब और अमीर का एक जैसा कानून होना चाहिए, ताकि यूथ को क्या पैगाम देंगे? मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यूथ भी पुरअमन रहे और बेजा तनकीद से बाज रहे, क्योंकि इदारी मजबूत हो तो मुल्क मजबूत होगा। जब इदारी कमज़ोर होगा तो मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मतलब हमें सबसे पहले मजबूत पाकिस्तान चाहिए और बाद में हम जो है ना मुल्क की फलाही का और आगे बढ़ने का और जो इस मुल्क में इंतशार पिलाना चाहता है उन क़ुव्वतों का हमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। और इदारे जब मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे, मुल्क मजबूत होंगे। इदारे जब कमज़ोर होंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा और हम कमज़ोर होंगे। इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमारे बड़ों की इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। और जब फ़ौज मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। और मैं सब एक अदना कारकुन की हैसियत से पूरे पाकिस्तानियों से ये अपील करता हो कि इदारों पे बेजा तनकीद कभी भी मत करो। जब इदारे मजबूत होंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मुल्क मजबूत होगा। जब इदारे कमज़ोर होंगे तो हमें इस मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा फिर नहीं होगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी शोरूम माफिया बेलगाम सूदखोरी धड़ल्ले से जारी। जब कोई शहरी टाइम पर गाड़ी खरीदता है तो थोड़ा लेट होने पर ब्लैकमेल हरासमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से शहरी ज़हनी अजियत का शिकार। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, IG पंजाब, RPO डेरा गाज़ी खान और DPO लिया से मुतालबा किया कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन सरफरोशानी इस्लाम कोटरी की तरफ से सालाना जश्न 11वीं शरीफ का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में मुल्क भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की। आने वाले अकीदतमंदों के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। प्रोग्राम में मौजूद पीर तलत महमूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी महफिल 11वीं शरीफ अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। हाज़रीन के लिए सिक्योरिटी और लंगर के इंतजामात भी किए गए। कहा कि इस महफिल में मुल्क भर से शुरका शिरकत कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बेहतरीन सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जो ये ग्रुप बना रहा है, चाहे वो कोई भी है, जो ग्रुप बना रहा है, क्या वो ये नहीं समझ रहा कि हम सरकार की गुस्ताखी के इशार पैदा करके फिर सरकार से मोहब्बत का दावा, क्या ये गुस्ताखी नहीं है? सरकार के दर पर आने से मना करना, क्या ये गुस्ताखी नहीं है?